Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe. Today we start our next unit, fraction. First of all, I will tell you about fraction. What is fraction? If a whole thing or object is divided into equal parts, the equal part of whole number is called the fraction. 1 by 2, 2 by 3, 5 by 6, 1 whole, 1 by 2 are the examples of fraction. एक फ्रैक्शन क्या होती है? एक बेसिकली होल पार्ट्स को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं फ्रैक्शन. Another definition of fraction is a fraction is a part of a whole number and a way to split up a number into equal parts. It is written as the number of equal parts being counted called the numerator over the number of parts in the whole called the denominator. These numbers are separated by a line. For example, 4 by 6, 10 by 15, 200 by 460. फ्रैक्शन होल नंबर का एक पार्ट होता है, यानी होल नंबर को जब हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में तो उसको कहते हैं फ्रैक्शन. जो हमारे काउंटेड पार्ट्स होते हैं या कलर्ड पार्ट्स हम कह सकते हैं वो लिखे जाते हैं ऊपर, उनको कहते हैं न्यूमरेटर. और जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं एक होल के उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी वो नीचे लिखे जाते हैं. और इन जो नंबर्स होते हैं इनको हम सेपरेट किससे करते हैं? एक लाइन से. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं 4 by 6 में 4 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है और उसको सेपरेट किससे किया गया है? इस एक लाइन से. स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन. वन इज न्यूमरेटर एंड अदर इज डिनोमिनेटर. The upper value of fraction is called numerator and the lower value of fraction is called denominator. Now see the example 4 by 9. In this example you can see that our upper value is 4, so this is our numerator, and the lower value is 9, so this is our denominator. If numerator is smaller than denominator, that fraction is called proper fraction. Now see the example 4 by 10. In this example you can see that 4 is smaller and 10 is greater, so this type of fraction is called proper fraction. If numerator is greater than denominator, that fraction is called improper fraction. Now see the example 9 by 4. In this example you can see that 9 is greater and 4 is smaller, so this type of fraction is called improper fraction. Proper fraction क्या होती है? जिसमें हमारी ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी होती है. और इम्प्रॉपर क्या होती है? जिसमें ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी होती है. जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होती, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर सेम, दैट फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसी फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. नाउ सी द एग्जांपल 6 by 8 and 2 by 8. In this fraction you can see that 8 is in denominator and both denominator are same, so this type of fraction is called like fraction. And unlike fraction, if the denominator of fraction are different, that fraction are called unlike fraction. Now see the example 1 by 8 and 6 by 4. In this example you can see that 8 and 4 is in denominator and both are different. Like fraction ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जबकि अनलाइक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. Now we start our topic. Our topic is addition and subtraction of like fraction and addition and subtraction of unlike fraction. First of all we have discussed addition of like fraction. Now see the example number 1. The question is 6 by 8 plus 5 by 8. Now you can see that both denominator are same, so we write the denominator in one time and we add the numerators. 6 plus 5 divided by 8. 6 plus 5 is equal to 11 and we write 8 in denominator. 11 by 8. 11 by, in this fraction you can see that 11 is greater and 8 is smaller, so this type of fraction is improper fraction. So we further divide this fraction 11 and 8. 11 is dividend and 8 is divisor. 8 ones are 8. 11 minus 8 is equal to 3. Now we write it as mixed number 1 whole 3 by 8. जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि ये
उसके बाद हमारा एरो इधर आ रहा है, इसके बाद हम ये लिखते हैं नीचे वाली वैल्यू और आखिर में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की जगह हम चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे वो होता है हम उसको वहीं पे लिखते हैं और बाकी वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। इस तरह हमारा बन जाता है मिक्स नंबर। नाउ वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सब्ट्रैक्शन 6/8 plus 5/8. When we students, now we can take the example of subtraction. Minus 6/8 minus 5/8. 8 both denominator are same, so we write the both denominator in one time. So 8 and 6 minus 5. 6 minus 5 is equal to 1. 1/8. This type of fraction is proper fraction, so we can not further divide this fraction. So our question is solved. Students, now we will discuss addition of unlike fraction. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप देखें 5/9 प्लस 2/3 दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक। अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करना है। जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम उसके लिए एलसीएम लेते हैं। वी टेक एलसीएम ऑफ 9 and 3. नाउ 3 3s are 9, 3 1s are 3. हमने देखना है कि 9 और 3 किस सेम टेबल में आते हैं, हमने वो टेबल यूज करना है। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 भी आता है। 3 3s are 9, 3 1s are 3. जब हमारा 1 आ जाए तो इट्स मीन हमारी वो वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, यानी अब हम 3 को और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ 1 आ चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आई है 3 and 1, उसमें हम सिर्फ 3 को सॉल्व करेंगे। 3 1s are 3 और 1 इसी तरह। देन वी मल्टीप्लाई बोथ प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब 9 जो हमारा जो हमारी 9 एलसीएम की वैल्यू आई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 होगी। 9 पहले से ही 9 है और दूसरी वाली फ्रैक्शन में 3 है, तो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 9 1s are 9 एंड 5 1s are 1, 5 1s are 5। और हम जो चीज़ डिनोमिनेटर के साथ करेंगे वही हमने न्यूमरेटर के साथ करना है। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हमें मस्ट न्यूमरेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस 2/3, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, सो वी टेक 3 in denominator and numerator also. 2 multiply 3, 5 1s are 5, 2 3s are 6, 9 1s are 9, 3 3s are 9. Now we have same denominator which is 9. Now we write 9 one time. 5 plus 6 divided by 9. 5 plus 6 is equal to 11. 11 by 9. Our answer is 11 by 9. 11 by 9 is a improper fraction. Our numerator is greater and denominator is smaller. So we further divide this 9 and 11. 11 in dividend and 9 is divisor. 9 1s are 9. 11 minus 9 is equal to 2. Now our answer is mixed number. So we write 1 first, then 2, and then in denominator 9. So our answer is 1 whole 2 by 9. Students, now we will discuss subtraction of unlike fraction. सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन और एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? सारा प्रोसीजर सेम होता है, सिर्फ हम एडिशन करते हैं अगर एडिशन गिवन है और सब्ट्रैक्शन करते हैं सब्ट्रैक्शन गिवन हो। बाकी एलसीएम लेना या उसको डिवाइड करना या उसकी कटिंग करना यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना सब सेम होता है। कुछ क्वेश्चंस में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि एग्जांपल 3 में हमने देखा 11 by 9 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, सो हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, यानी हमने इसको रिड्यूस नहीं किया। अगर हमारी दोनों वैल्यूज़ किसी सेम टेबल में आ रही हों तो हम उसको फर्दर रिड्यूस करते हैं और देन हम उसका मिक्स नंबर बनाते हैं। Now we take example 8 by 14 minus 3 by 7. 14 and 7 both denominator are different, so we take LCM. LCM of 14 and 7 we take a number which divide 14 and 7. We use smallest prime which is 2. 2 7s are 14 and 7 is not in the table 7. The value of 7 is not in the table of 2, so we write 7 as it is. Then 7 1s are 7 and 7 1s are 7. हमारे वैल्यूज़ 1 आ चुकी हैं नीचे, सो अब हम इस एलसीएम को आगे डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी मल्टीप्लाई बोथ प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14. अब जो हमारी एलसीएम की वैल्यू आई है वो हमें डिनोमिनेटर में बनानी है। एक फ्रैक्शन हमारी ऑलरेडी 14 है, इसलिए 14 1s are 14 and 8 1s are 8.
सेकंड वैल्यू हमारी 7 है, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 हो जाएगा। वही 2 हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही काम हमने न्यूमरेटर में मस्ट करना होता है, ये एक रूल है मैथ्स का। देन वी मल्टीप्लाई 8 1s are 8, 14 1s are 14, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 8 minus 6 equal to 2, 2 by 14. Now we see that 2 and 14 both are even number and both are in the table of 2. So 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 by 7. 1 by 7 is a proper fraction, so we cannot further divide this. So this is our answer. Students, now we will take an example of mixed number. First of all, we change mixed number into improper fraction. हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम डिनोमिनेटर को 7 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले नंबर में उसको प्लस कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4s are 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 बाई 6 प्लस 4 2s are 8 प्लस 3 11 बाई 4। हमारे डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, सिर्फ हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज होती है। Then we follow further steps. First we take a LCM because our denominator are different. 6 and 4. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 1s are 3, and 2 as it is. 2 1s are 3 1s are 3 and 2, and 2 1 comma 2 1s are 2. Then we multiply prime factor 2 multiply 3 multiply 2 which is equal to 12. So अब हमारे डिनोमिनेटर का में क्या वैल्यू यूज़ होगी? 12। अभी हमारे डिनोमिनेटर में 6 और 4 है। 6 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा 2 से। 6 मल्टीप्लाई 2, हम डिनोमिनेटर में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 11 मल्टीप्लाई 3। 25 2s are 50, 6 2s are 12, 11 3s are 33, 4 3s are 12. Our denominator are same. So we write denominator one time, and 50 plus 33 is equal to 83. 83 divided by 12. 12 6 are 72. 3 minus 2 1. 8 minus 7 is equal to 1. So our remainder is 11. So we write 6 first, then 11, and then denominator 12. So that's it class. Now मैं आपको बताऊं कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबके प्रोसीजर सेम होते हैं, सिर्फ कुछ मेथड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जब हम लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारी जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी सेम होते हैं। हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं? हमें उनको प्लस करके, अगर कटिंग होती है तो कटिंग करनी है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, या उसके बाद अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसको डिवाइड करेंगे। माइनस वाले सब्ट्रैक्शन में हमें सिर्फ माइनस करना होता है, बाकी सारे स्टेप सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में बस हमें एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, बाकी सारी वैल्यू हमारी सेम होती है। इसी तरह मिक्स नंबर वाले क्वेश्चन में मिक्स नंबर को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उनको सेम करेंगे, यानी अगर अनलाइक है तो हम उसको लाइक में कन्वर्ट करेंगे, बाकी हमारा सारा प्रोसीजर सेम होता है। अब आपने क्या करना है? एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों की वो सॉल्व कर दूँगी प्रॉब्लम्स।